In the previous class, we have discussed about the one many one function into onto functions. And today we'll be discussing first about the algebra of functions, and later stages we'll be discussing about the composite functions. Algebra of functions, जैसा नाम से पता लगता है, when we say algebra of functions, addition, subtraction, multiplication or division of two or more functions. दो या दो से ज्यादा functions and you are performing the operation of addition or subtraction or multiplication or division. So what is required for that? छोटे से एग्जांपल से बात चालू करें हम, बहुत छोटा सा पार्ट है, बट वी मस्ट बी कंफर्टेबल देयर. इफ f(x) is equals to x square plus 1, that function is x square plus 1 for x belongs to R, and if gx is a second function there, let's say that's a linear function which is 2x plus 3, and again that is for x belongs to R. These are the two functions there, fx as well as gx. We have to perform algebra of functions. हमें ये algebra of functions की बात करना है. That means we have to perform addition, subtraction, multiplication and division. ये चारों ऑपरेशन परफॉर्म करना है for these two functions. So if I had to perform fx plus gx, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं. Addition, subtraction, multiplication, division. The requirement is डोमेन फॉर बोथ द फंक्शन मस्ट बी सेम. इफ यू वांट टू ऐड द टू फंक्शन, सिंपल सी बात है, बिल्कुल ऐड कर दीजिए आप. शर्त यह है कि उनके डोमेन सेम बना लीजिए. तो यहां पर अगर दोनों फंक्शन के डोमेन अगर आप ऑब्जर्व करते हैं, डोमेन ऑफ दैट फंक्शन इज ऑल रियल वैल्यूज, डोमेन ऑफ दैट फंक्शन इज ऑल रियल वैल्यूज, डोमेन में कहीं कोई इशू नहीं है, दोनों के डोमेन ऑल रियल वैल्यूज हैं, दोनों को ऐड कर दीजिए डायरेक्टली. सो एफ एक्स प्लस जी एक्स इज गोइंग टू बी एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x प्लस 3 for what? For x belongs to R. That is the common domain. क्या होगा? तो domain is दोनों का same है, all real values. It is x belongs to R. It will be x square plus 2x plus 4. That's the function there. That's a new function. Clearly that's a new function. दोनों function को add कर रहे हैं तो एक नया function बन रहा है. And that is some x square plus 2x plus 4 for x belongs to R. If you want to subtract, yes you can, fx minus gx. The only condition requirement is domain for those two functions must be same. Already it is same. It is x square plus 1 minus of 2x plus 3. सिंपल जैसे subtract करते हैं 5 minus 3, वैसे ही दो functions को subtract करना है. Domain is all real value. It is going to be x square minus 2x minus 2. That's going to be a new function there, which is fx minus gx. And likewise multiplication of the two functions, which is simply x square plus 1 into 2x plus 3 for x belongs to R. And the finally about the division of the two functions, which is fx by gx. Definitely add, subtract, multiply, divide जब कर रहे हैं तो नया function बन रहा है वो. That's x square plus 1 upon 2x plus 3. Domain of that function is all real values, but you will have to take care whenever you are dividing the two functions. You will have to take care. Addition, subtraction, multiplication में तो कोई दिक्कत नहीं है, but in case of division you will have to take care that the function which is there in the denominator cannot be equals to 0 for any value present in the domain. So if I write x belongs to R, तो वो बिल्कुल incorrect होगा, क्योंकि x belongs to R में definitely denominator will become 0 at minus 3 by 2. So for that we'll have to exclude that point. Domain में से उस point को exclude कर दीजिए जिसके लिए gx 0 बन रहा है, because denominator कभी 0 नहीं होना चाहिए. तो all real values excluding minus of 3 by 2. All real values excluding minus 3 by 2. So that's the simple question based on the addition, subtraction, multiplication, division. यहाँ कोई दिक्कत इसलिए नहीं, because for both the functions domain of the two functions are same. Directly add, subtract, multiply, divide कर दीजिए. Now the question comes, सर अगर डोमेन सेम नहीं हुए तब क्या होगा? Yes, we are discussing that. कि अगर डोमेन सेम नहीं हुए तब क्या होगा? We are going to make the domain same and then we are going to add. We discussed that. Just note down this. So previous question we have discussed the two functions. ये बोर्ड में पूछे जाते हैं, ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, fx g दोनों का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन. बट लगभग क्वेश्चंस उतने ही आते हैं कि जहाँ लोग या तो डोमेन सेम बना के देते हैं वो, या एक आध इस लेवल तक का सवाल, बट ये पूछे जा सकते हैं.
सो अभी अगेन आपको एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन परफॉर्म करना है और ये दो फंक्शंस दिए हैं. बट द प्रीवियस क्वेश्चन वाज द डायरेक्ट क्वेश्चन जहां पे दोनों फंक्शंस के डोमेन सेम थे. डायरेक्टली हमने ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड किया. लेकिन अब की बार अगर आप देखें, अगेन मुझे एफ एक्स प्लस जी एक्स, एफ एक्स माइनस जी एफ, एफ एक्स इंटू जी एक्स, एफ एक्स बाई जी एक्स करना है. लेकिन दोनों फंक्शंस के डोमेन सेम नहीं है और ये थोड़ा सा बहुत प्रॉपर वे में आप इसको ऑब्जर्व करिएगा. इट इज x less than 3 for x square minus 4x plus 3, that function there. X greater than equals to 3 for x minus 5, x minus 2 for x less than 4, and x square plus 2x plus 4 for x greater than equals to 4. ठीक है. अब ऐड सब कुछ कर सकता हूं, डोमेन सेम बनाना पड़ेगा. क्या लगता है आपको? अभी एक बोलता है less than 3, x less than 4, विल हैव टू मेक द, या विल हैव टू टेक द कॉमन डोमेन्स. और कैसे देखना, ध्यान से देखिएगा और आप समझेंगे, मजा भी आएगा. लेस देन 3, लेस देन 4. इनिशियल स्टेजेस में यू कैन प्लॉट दोज रूट्स ऑन द रियल नंबर लाइन और रियल नंबर लाइन के ऊपर देख सकते हैं. देखो, द फर्स्ट इंटरवल इज x लेस देन 3 और ये बोलता है x लेस देन 4. वी विल बी टेकिंग द कॉमन ऑफ द टू, देन ओनली वी कैन ऐड. लेस देन 3, दिस इज लेस देन 3, लेस देन 4. ठीक है. लेस देन 3, लेस देन 4 का जो कॉमन होगा वो क्या कॉमन है? लेस देन 3. तो दैट्स गोइंग टू बी द फर्स्ट इंटरवल देयर. ये पहला इंटरवल हो जाएगा दोनों फंक्शंस के लिए, क्लियरली फॉर बोथ द फंक्शंस. दैट इज दिस, है ना, x लेस देन 3. दोस्तों x लेस देन 3 में फंक्शन है यहां पर x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3. फाइन. If I take gx, x less than 3 में which function is there? x less than 3, x minus 2. So x less than 3 कॉमन डोमेन, कॉमन लिया दोनों का. अब लेकिन less than 3 लिया तो एक इंटरवल है less than 3, दूसरा है less than 4. अब less than 3 लिया तो द सेकेंड वन, जो which is from 3 to 4, 3 to 4, 3 to 4. Three to 4 is going to be the second domain there. अब 3 to 4 में which function is there for fx? 3 to 4 greater than equals to 3 but less than 4. तो x minus 5 is the function जो कि x greater than equals to 3 के लिए. तो greater than equals to 3 के लिए x minus 5. 3 to 4, 3 to 4 greater than equals to 3 but less than 4. Which function is there for gx? So up to less than 4 that function is x minus 2. Fine. Right? ये हो गई कहानी up to less than 4. Right? Less than 4 तक हो गया. Now the last interval is going to be 4 से infinity including 4. So clearly for greater than equals to 4, which function is there for fx? That is x minus 5. And here it is x square plus 2x plus 4. Tick. This is fx, this is gx. And that's how you have made the domain same here. Common domain बनाया आपने. बस इतना सा ही है. बोले अब क्या करना है? 2 plus 3 5 करते हैं ना, वैसे ही दोनों फंक्शंस को ऐड कर दीजिए. 2 minus 3 minus 1 करते हैं, ठीक वैसे ही सब्ट्रैक्ट कर दीजिए और ठीक वैसे मल्टीप्लाई कर दीजिए. डिवीजन में जस्ट डू टेक केयर दैट ओके डिनोमिनेटर कैन नेवर बी इक्वल्स टू 0. बस इतनी सी बात है जिसका आपको ध्यान रखना होगा. ठीक. इफ आई डू ऐड द टू फंक्शंस fx plus gx, x square minus 4x plus 3 plus x minus 2, that is for what? For x less than 3. Simple. डोमेन तो ऑलरेडी सेम है. x minus 5 plus x minus 2, 3 to 4, x minus 5 plus x square plus 2x plus 2 for greater than equals to 4. That is nothing but fx plus gx. अगर मैं fx minus gx की बात करता हूं तो here the instead of plus sign it's going to be minus sign there. ठीक है ना, समझ रहे हैं ना इस बात को. If I say fx
into gx. So instead of this plus sign there is going to be a multiplication sign there. Already domain तो बना चुके हैं. And I am also going to write there fx by gx लिख देता हूँ मैं आप लोगों के लिए. fx by gx, that is simple division is there. x square minus 4x plus 3 divided by x minus 2 for what? For x less than 3. अब x लेस देन 3 तो ठीक है, बट मुझे ये ध्यान रखना होगा कि x लेस देन 3 में कोई ऐसा पॉइंट तो नहीं आ रहा है जिस पर डिनोमिनेटर 0 बन रहा है. तो x लेस देन 3 में गड़बड़ हो जाएगी और वो ये होगी, क्या होगी? x इक्वल टू 2 इज देयर. x लेस देन 3 से छोटा है, तो उस केस में 2 इज देयर. 2 पे डिनोमिनेटर 0 बन जाएगा. समझ रहे हैं क्या इस बात को? तो x लेस देन 3 लिख दीजिए, लेकिन उसमें से 2 एक्सक्लूड कर दीजिए. ठीक है ना? x लेस देन 3 एक्सक्लूडिंग 2, और यू कैन राइट इट, आप इसे जरूर लिख सकते हैं. x इज एन एलिमेंट ऑफ माइनस इंफिनिटी टू 2 यूनियन 2 to 3, जैसा आप चाहें. द सेकेंड वन, x माइनस 5 डिवाइडेड बाय x माइनस 2, दैट्स फॉर द इंटरवल 3 to 4. अब 3 to 4 में 2 तो आ नहीं रहा है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है. And the third one, x minus 5 divided by x square plus 2x plus 4 for x greater than equals to 4. बोले सर डिनोमिनेटर चेक करो, x square plus 2x plus 4 always going to remains positive. Why? Because its d is negative. ज़्यादा नहीं सोचना रहेगा. सिंपल एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन. बट यहाँ पे एक जो नई बात आपने देखी और वो ये था कि डोमेन सेम नहीं थे तो हमने डोमेन सेम बनाए हैं. यहाँ पर कैसे बनाए फिर से देख लीजिए. इट इज x लेस देन 3, x लेस देन 4. तो ये लेस देन 3 और ये लेस देन 4. तो कॉमन इंटरवल क्या है? दैट इज लेस देन 3. जो सेकेंड इंटरवल होगा वो क्या होगा? जब लेस देन 3 का है तो 3 से 4. लेस देन 3 लेस देन 4 में कॉमन तो लेस देन 3 हो गया. So which one is the remaining one? So 3 to 4. So that's going to be the second one, and the third one is 4 to infinity. बस. Now look for the second one. fx and gx are two functions given there, and again you have to perform the algebra of functions. You'll have to make the domain same, common domain बनाना होगा. उसके बाद में आप परफॉर्म कर सकते हैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन. सिंपल टास्क है. इट इज लेस देन इक्वल्स टू -2, इट इज लेस देन -4. ये रियल नंबर लाइन पे तो केवल समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बता देता हूं. अगर आप कंफर्टेबल हैं आप डायरेक्टली कर लीजिए, उसमें क्या दिक्कत है. सो लेस देन -4 और लेस देन इक्वल्स टू -2. और सेकेंड वन ये बोलता है ग्रेटर देन -2 और there it is greater than equals to -4. -4 से greater than equals to and then -2 से greater than equals to. The first interval is clearly going to be, जो पहला इंटरवल होगा वो क्या इंटरवल होगा? तो पहला इंटरवल इन दोनों का कॉमन, that is this, clearly less than -4. जो सेकेंड इंटरवल होगा वो क्या होगा? -4 से -2. ठीक. और जो थर्ड इंटरवल होगा ये बोलता है ग्रेटर देन -2, बोलता है ग्रेटर देन इक्वल टू -4. -4 से -2 ऐसे भी अलग कर लिया हमने. तो -2 से ग्रेटर, दैट इज गोइंग टू बी द थर्ड इंटरवल. ये 3 इंटरवल में आप इसको स्प्लिट कर लेंगे. सो इट इज गोइंग टू बी पहला वाला x लेस देन -4. द फंक्शन क्या होगा? व्हाट इज fx देयर? तो बहुत ज्यादा नहीं सोचना है. x लेस देन इक्वल टू -2, द फंक्शन इज x स्क्वायर प्लस 3. तो लेस देन -4 में भी फंक्शन तो x स्क्वायर प्लस 3 होगा. जो सेकेंड इंटरवल है दैट इज क्लियरली -4 और -4 से -2. बोले सर आप ये इंक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग कैसे लगा देते हो? अपनी तरफ से नहीं लगाता हूँ, इसी को ऑब्जर्व करते हुए लगा रहा हूँ कि इट इज लेस देन -4 और लेस देन इक्वल टू -2. तो व्हाट इज द कॉमन ऑफ द टू? तो दैट इज क्लियरली लेस देन -4. तो मैं अपने मन से इक्वल टू साइन नहीं प्लेस करूंगा यहाँ पर. और फिर -4 से ग्रेटर देन इक्वल टू अप टू व्हाट? तो अप टू लेस देन इक्वल्स टू -2. ऐसा. तो -4 से -2 तक दैट फंक्शन इज x स्क्वायर प्लस 3 अगेन. द थर्ड इंटरवल इज x ग्रेटर देन -2, दैट फंक्शन इज 3x प्लस 4 देयर.
जी एक्स इज व्हाट इज दैट जी एक्स देयर, जब मैं जी एक्स लिखूंगा तो जी एक्स में x लेस देन -4, x -4, -4 से -2, -4 से -2, which function is there? That is x square plus x plus 1. Then greater than -2. That function is x square plus x plus 1. And now simple addition, subtraction, multiplication and division. बस यही स्टेप है जो इंपॉर्टेंट स्टेप है, कॉमन बनाना है डोमेन। और केवल डिवीजन के समय आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि जी एक्स एफ एक्स बाई जी एक्स अगर कर रहे हैं तो जी एक्स कैन नॉट बी इक्वल टू 0 फॉर एनी वैल्यू विच इज प्रेजेंट इन द डोमेन ऑफ दैट फंक्शन। बस ठीक, ये बात समझ में आती है या नहीं आती, बस यही एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। नाउ विल बी डिस्कसिंग द कंपोजिट फंक्शंस। तो कंपोजिट फंक्शंस जो हमने डिस्कस किया दैट वाज अलजेब्रा ऑफ फंक्शन। नाउ वी आर डिस्कसिंग कंपोजिट फंक्शंस। इफ एफ एक्स एंड जी एक्स आर टू फंक्शंस देयर, एफ एक्स और जी एक्स कुछ फंक्शंस हैं, एंड व्हेन वी डिस्कस अबाउट एफ ऑफ जी ऑफ एक्स और जी ऑफ एफ ऑफ एक्स या एफ ऑफ एक्स, दैट द कंपोजिट वन। क्या मीनिंग है वो देखें जरा, हम अलग अलग दो केसेस बना के बात करें। द फर्स्ट वन विच इज द सिंपल वन, f is a function from a to b. If I write a to b, that means that clearly suggests you that a is the domain of that function and b is the codomain of that function. And there is a second function which is gx, and for that it is b to c. That b is the domain of that function and c is the codomain of that function, second function gx. देखें जरा यहाँ पर, there is some element x present in the domain of a, in the domain of a से मतलब वो फंक्शन एफ एक्स है, उसका डोमेन जो है a, और उस डोमेन में कोई एलिमेंट है, x इज एन एलिमेंट ऑफ a, भाई डोमेन का ही तो एलिमेंट है x, है ना। एंड इफ आई टेक द इमेज ऑफ दैट फंक्शन अंडर द मैपिंग f, अंडर द मैपिंग f, दैट इमेज ऑफ दैट फंक्शन या image of that element x is nothing but fx there, right? So under the mapping f ये position है। Now from b to c, now from b to c, that ये x is an element of that, this is the image of that function under the mapping f, and now for the element fx which is present in the domain of g of x under the mapping g, element fx, उस element fx की जो image होगी that is going to be g of f of x, because this is the element there और इसकी image under the mapping g जब देख रहा हूँ, तो there is going to be a new mapping there, एक नई mapping होगी, नई mapping हम define करेंगे, और वो नई mapping होगी, let's say if I define it by hx बोलूँ या g of f of x बोलता हूँ मैं, g of f बोले गॉफ, या फिर उसको g of f of x कहें आप, है ना, इट इज सेम, ये एक ही बात है, g of f या g of f of x, फॉर दैट इट इज फ्रॉम a to c, a इज द डोमेन ऑफ दैट फंक्शन। भाई ये तो दो मैपिंग्स हैं fx और gx, ठीक है, और a to b में इट इज f, b to c में इट इज g. Now the element x is having the image g of f of x directly, ये नया फंक्शन हो गया, g of f of x is the new function there, let's say उसको मैं hx से डिनोट करता हूँ, क्या दिक्कत है, let's say that function is hx, उसमें क्या हो रहा है, that function is having the domain of that function as a and the codomain of that function as c. तो requirement is whenever we say g of f of x to exist, g of f of x exist कब करेगा, ये मैपिंग कब एग्जिस्ट करेगी, g of f of x which is a new function there, that will exist when range of fx, जो fx की रेंज है भाई,
ये x एलिमेंट है और उसकी इमेज जब देख रहे हैं अंडर द मैपिंग f इज fx, so that's nothing but the range of fx and which is becoming the domain of g of x. तो range of fx must be subset of, range of fx must be subset of. यहाँ तो हमने इस ढंग से मैपिंग ली है कि that is becoming subset of domain. ये डोमेन में तो आ रहा है, fx कहाँ आ रहा है, तो fx उसके डोमेन में ही आ रहा है. किसके डोमेन में, gx के डोमेन में, इसलिए वो मैपिंग वो f फंक्शन एग्जिस्ट करेगा. रेंज ऑफ fx मस्ट बी सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ g ऑफ x. तब ये मैपिंग, ये नई मैपिंग है, दैट्स अ न्यू फंक्शन. ये fx एक फंक्शन, gx एक फंक्शन, और दैट्स द थर्ड फंक्शन विच इज g ऑफ f ऑफ x फ्रॉम a to c. डायरेक्टली दिस इज द मैपिंग देयर, a to c. दैट इज दिस, ये जो मैपिंग एरो लगा के बनाया है, दैट इज नथिंग बट h ऑफ x एंड दैट इज डिफाइंड फ्रॉम a to c. ठीक है ना. और ये मैपिंग एग्जिस्ट करेगी प्रोवाइडेड रेंज ऑफ fx, ये x से अंडर द मैपिंग f उसकी इमेज fx है, और ये जो fx है रेंज ऑफ fx ही तो वही है, x अंडर द मैपिंग f इसकी जब इमेज ले रहा हूं, दिस इज द रेंज मस्ट बी सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ g. ये जो भी आ रहा है ये g के डोमेन में होना चाहिए, तो वो होगा यहाँ पर, क्योंकि जो fx है दैट इज देयर इन द b ओनली, तो डायरेक्ट आने वाला है. लाइकवाइज यहाँ पर मैं ये बोल सकता हूं, देखिएगा let's say g is a mapping, yeah, gx is the function there which is from a to b. लैंग्वेज वाइज थोड़ा सा दिक्कत. आप लोगों को तो एडवाइस किया गया था कि तीनों एक साथ, चारों एक साथ नहीं बैठना, तो भी अब पास हो ही गए. मैं तो याद है, मुझे बुला नहीं. मैं ए टू बी लैंग्वेज वाइज थोड़ी सी दिक्कत आएगी इसमें. क्वेश्चन देखेंगे आसानी से बनेंगे, और इनफैक्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस कंपोजिट फंक्शंस. टफ होता है थोड़ा सा, लेकिन हम इसको एनालिटिकल वे में भी देखेंगे, एज वेल एज वी आर गोइंग टू डिस्कस इन ग्राफिकल वे, और डायरेक्ट भी देखेंगे, जो कि शॉर्टकट आप कह लो. भोपाल में ट्रिक्स ज़्यादा प्रचलित है एक्चुअल में, तो यहाँ पे उन ट्रिक्स के अकॉर्डिंग भी आप देख सकते हैं. नाउ देयर इज अ फंक्शन जी एक्स ए टू बी. तो अंडर द मैपिंग एक्ट जी x is an element present in the now g फंक्शन का डोमेन है a, है ना. तो x is an element of a, और उसकी इमेज ली है मैंने अंडर द मैपिंग g, दैट इज gx b to c. अंडर द मैपिंग f के अंडर में अगर आप देखोगे तो gx की जो इमेज है, क्योंकि gx इज बिकमिंग एलिमेंट ऑफ द डोमेन ऑफ fx, और उसकी जब रेंज देखोगे आप, इट इज बिकमिंग f ऑफ g ऑफ x. तो देयर इज अ न्यू मैपिंग फ्रॉम a टू c विच इज, लेट्स से इसको मैंने hx का नाम दिया था, इसको कुछ h1x का नाम देते हैं अपन, विच इज गोइंग टू बी f ऑफ g ऑफ x. एंड व्हेन आई राइट f ऑफ g ऑफ x, which is from A to C, ये एक नई मैपिंग होगी. एंड एग्जिस्टेंस इसका तब होगा, f ऑफ g ऑफ x के एग्जिस्टेंस के लिए जरूरी है दैट रेंज ऑफ gx मस्ट बी सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ f ऑफ x. लेकिन इस केस में तो डेफिनेटली जो भी gx आएगा वो gx b में ही तो आने वाला है, तो इज गोइंग टू बी सबसेट, वो तो होना ही होना है. इसलिए ये फंक्शन एग्जिस्ट करेगा. कौन सा, दैट्स ए न्यू फंक्शन. ये इसको h1x से मैंने नाम दिया, बट दैट्स द कंपोजिट वन. तो जैसे ये मैंने g ऑफ f ऑफ x लिखा, f ऑफ g ऑफ x लिखा, ठीक वैसे ही देयर कुड बी f ऑफ x. f ऑफ x का मतलब क्या हुआ, f ऑफ x से मतलब हुआ under the mapping f, this is x
दिस इज एफ एक्स, और एफ ऑफ एक्स मीन्स, अब यहां पर ये वैल्यू सेम ही हो जाएगी, यहां पे दिखाना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा. अगेन अंडर द मैपिंग एफ, दिस एफ एक्स इज हैविंग द इमेजेस एफ ऑफ एक्स, दैट्स गोइंग टू बी अ न्यू मैपिंग देयर. ठीक, सो वील बी डिस्कसिंग दोस क्वेश्चंस. रिक्वायरमेंट क्या है ये ध्यान रखिएगा थोड़ा सा. जी ऑफ एफ ऑफ एक्स जब मैं लिख रहा हूं तो रेंज ऑफ एफ एक्स मस्ट बी सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ जी ऑफ एक्स, एंड व्हेन आई राइट एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, रेंज ऑफ जी एक्स मस्ट बी सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स. यूजिंग सम सिंपल क्वेश्चंस, बहुत छोटे छोटे से एग्जांपल्स लेंगे, एंड बेस्ड ऑन दैट विल बी डिस्कसिंग दैट एफ ऑफ जी ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एफ ऑफ एक्स एंड एफ ऑफ एक्स, सो दैट यू विल बी गेटिंग दिस आइडिया क्या आइडिया क्या है. और फिर विल बी डिस्कसिंग द सेकंड केस जहां पे वो डायरेक्टली, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा ए टू बी एंड बी टू सी, यहाँ पे दिस इज द कोडोमेन देयर एंड दिस इज बिकमिंग द डोमेन हियर. ये तो एक केस हुआ. तो एक सीधी सी बात है, जो भी रेंज आने वाला है वो यहाँ पर डोमेन में रहेगा तो वो फंक्शन एग्जिस्ट करेगा, दैट फंक्शन विल एग्जिस्ट देयर. बट विल बी टेकिंग अ सेकंड केस वेयर इट इज गोइंग टू बी ए टू बी एंड इट इज गोइंग टू बी सी टू बी, जहां डायरेक्टली वो पूरा जो कोडोमेन है वो डोमेन नहीं बन रहा है नेक्स्ट फंक्शन के लिए. विल बी डिस्कसिंग दैट केस, बट विल बी लुकिंग फॉर अ सिंपल केस फर्स्ट. नाउ द क्वेश्चन इज, f is r to r, that mapping fx is what, from r to r. r to r का मीनिंग आप जानते हैं, domain of that function is all real values and codomain of that function is all real values, and that fx is 4x minus 1 there. g is a mapping there, second mapping there again from r to r, and that fx is 2x square plus 1, sorry, that is gx. now our requirement here is, हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है f of g of x, what is that function f of g of x, what is that function g of f of x. ठीक, देखिएगा, to find out g of f of x, यहाँ पर if you observe here that both the functions are from r to r, दोनों ही functions r to r में कहीं कोई लोड नहीं है. that means एक सीधी सी बात है कि both the mappings f of g of x as well as g of f of x is going to exist. f of g of x भी एग्जिस्ट करेगी और g of f of x भी एग्जिस्ट करेगी. ठीक, देखिएगा, of f of x या f of g of x. if I say f of g of x, हो क्या रहा है यहाँ पर, ये f of g of x, this is x, this is under the mapping g, this is g of x, and now under the mapping f, this is f of g of x. so f of g of x एग्जिस्ट करेगा. कब एग्जिस्ट करेगा, जब ये रेंज ऑफ जी एक्स, ये x है और ये x की इमेज जब आप देखते हैं तो दैट इज व्हाट, दैट इज नथिंग बट द रेंज, दैट gx, एंड दैट gx मस्ट बी सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ fx. तो भैया सबसेट का कोई लोड नहीं है, इट इज फ्रॉम r to r. तो जो gx होगा, gx का रेंज, इफ आई आस्क यू द रेंज ऑफ gx, एनीबॉडी कैन टेल मी द रेंज ऑफ gx, रेंज ऑफ gx बता सकते हैं आप मुझे? बहुत छोटे से, मैं 2 लाइन का लिखना है, रिजल्ट हो दो. रेंज ऑफ gx क्या होगा? नो, नॉट ऑल रियल वैल्यूज. डियर कैसे बोल रहे हो ऑल रियल वैल्यूज? 2x स्क्वायर प्लस 1, इट कैन नेवर बी नेगेटिव. सही सही बताओ यार, रेंज छोटे से फंक्शन की रेंज जरूरत नहीं, लेकिन मैं तो आपको समझा रहा हूं. मैं 1 to infinity, भाई 0, ये तो मिनिमम वैल्यू 0 लेगा तो प्लस 1 इज ऑलवेज देयर, 1 से इन्फिनिटी. तो रेंज ऑफ gx इट इज 1 to infinity, मस्ट बी सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ fx. या डोमेन तो भैया ऑल रियल वैल्यूज है. डोमेन ऑफ fx क्या है, तो ऑल रियल वैल्यूज है. ये मैपिंग जो है, दैट्स अ न्यू मैपिंग f of g of x इज ऑलवेज गोइंग टू एग्जिस्ट. वो तो हमेशा एग्जिस्ट करने वाली है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि रेंज जो है इज ऑलवेज गोइंग टू बी सबसेट. बोले सर उसको चेक करना पड़ेगा क्या? देखो समझाने वाली बात है. डोमेन ऑफ fx क्या है, तो डोमेन ऑफ fx से ऑल रियल वैल्यूज. तो भैया जो भी रेंज होगी, ऑल रियल वैल्यूज से बाहर तो कुछ होता ही नहीं है, बिकॉज वी आर डिस्कसिंग रियल फंक्शंस. उससे बाहर की तो बात कर ही नहीं रहे हम. तो जो भी रेंज होगी मैक्सिमम ऑल रियल वैल्यूज ही हो सकती है, और जो भी होगी वो ऑल रियल वैल्यूज से बाहर तो जाएगी नहीं. इसका सीधा सा मतलब है कि f of g of x हमेशा एग्जिस्ट करेगा. f of g of x हमेशा एग्जिस्ट करेगा. और f of g of x जब मैं लिखूंगा, दैट इज, दोस्तों दिस इज फंक्शन fx विच इज 4x minus 1,
तो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स दोस्तों 4x माइनस वन, इट इज 4 टाइम्स, इन प्लेस ऑफ x इट इज जी एक्स माइनस वन, 4 टाइम्स व्हाट इज जी एक्स, 2x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1, इट इज 8x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1, ठीक है ना, प्लस 4 माइनस 1 3, दैट इज एफ ऑफ जी ऑफ एक्स. That's the new function which is f of g of x. If I had to calculate g of f of x, again यहां पर भी परेशानी नहीं है. क्यों नहीं? कि जो रेंज ऑफ एफ एक्स है, एनीबडी कैन टेल मी द रेंज ऑफ एफ एक्स हियर, एफ एक्स की रेंज 4x माइनस वन, दैट्स ए लीनियर फंक्शन. लीनियर फंक्शन है, कोई लोड नहीं, ऑल रियल वैल्यूज, ऑल रियल वैल्यूज इज द रेंज ऑफ दैट फंक्शन. तो g ऑफ f ऑफ x अगर मुझे फाइंड आउट करना है तो g ऑफ f ऑफ x के लिए जो रेंज ऑफ f x है, रेंज ऑफ f x, तो रेंज ऑफ f x है भैया ऑल रियल वैल्यूज, मस्ट बी सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ gx. कोई लोड नहीं है, gx का जो डोमेन है वो क्या है, ऑल रियल वैल्यूज. ऑल रियल वैल्यूज से बाहर तो कुछ हो नहीं सकता, फंक्शन तो हमेशा एग्जिस्ट करना है. तो g ऑफ f ऑफ x अगर मुझे कैलकुलेट करना होगा तो इट इज सिंपली g ऑफ f ऑफ x इज व्हाट, ये gx इज 2x स्क्वायर प्लस 1 ट्वाइस ऑफ x की जगह gx, सॉरी x की जगह fx, और fx क्या फंक्शन है, ट्वाइस ऑफ fx, ये नया फंक्शन, दैट इज g ऑफ f ऑफ x. If I had to calculate f of x, ध्यान से देख लीजिए प्लीज, f of x कैलकुलेट करना आपको, कुछ नहीं तो दो लाइन के, थोड़ा सा आगे जब चलेंगे तो ये बात मैं बहुत बेहतर ढंग से समझा पाऊंगा कि रेंज और कैसे रेंज सबसेट होगा तब फंक्शन एग्जिस्ट करेगा नया फंक्शन, और रेंज अगर सबसेट नहीं है तब नहीं करेगा. यहाँ पे तो ऑलरेडी जो हमने क्वेश्चंस लिए दोज आर दैट टाइप ऑफ क्वेश्चंस. एफ एक्स का जो डोमेन है वो क्या है, ऑल रियल वैल्यूज, और जी एक्स का डोमेन है ऑल रियल वैल्यूज. तो तय बात है कि एफ ऑफ जी ऑफ एक्स और जी ऑफ एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ जी ऑफ एक्स सब कुछ एग्जिस्ट करना, जी ऑफ एक्स. देखिए कैसे, एफ ऑफ एक्स, सुन लीजिएगा इस बात को ध्यान से, एफ ऑफ एक्स ये फंक्शन एग्जिस्ट करेगा, कब करेगा, जब रेंज ऑफ एफ एक्स मस्ट बी सबसेट ऑफ व्हाट, सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स, बिकॉज इट इज एफ ऑफ एक्स, है ना. इट इज लाइक दिस इज एक्स, दिस इज एफ ऑफ एक्स पहले बनाया था मैंने, एंड देन इट इज अगेन अंडर द मैपिंग एफ, इट इज एफ ऑफ एक्स, ये एफ फिर अगेन अंडर द मैपिंग एफ, दैट्स अ न्यू मैपिंग विच वी आर डिस्कसिंग, दैट्स अ न्यू मैपिंग विच वी आर डिस्कसिंग. अब एफ एक्स की रेंज क्या है, तो एफ एक्स की रेंज है क्या है भैया, ऑल रियल वैल्यूज. ठीक है यार, चाहे जो भी रेंज होती है, एक बात होता है कि जो डोमेन है एफ एक्स का वो तो ऑल रियल वैल्यूज है, तो जो भी रेंज होगी वो सबसेट होगा ही होगा, तय बात है. एफ ऑफ एक्स भी एग्जिस्ट करेगा, एफ ऑफ एक्स. ध्यान से देख लें क्या करना होगा, दैट इज एफ एक्स 4x माइनस 1 4 टाइम्स, इन प्लेस ऑफ एक्स एफ एक्स माइनस 1, ठीक, दैट इज 4 टाइम्स, बोले एफ एक्स, अगेन कीप द वैल्यू ऑफ एफ एक्स 4x माइनस 1 16x माइनस 4 माइनस 5. आ रहा समझ में, दैट इज अ कंपोजिट फंक्शन, दैट्स अ न्यू फंक्शन देयर. बोले से बस 2 ही तक हो सकता है क्या, 2 का नहीं 10 तक हो सकता है, वो तो n नंबर ऑफ टाइम्स यू कैन टेक द मैपिंग्स देयर. जैसे और बताऊं मैं आपको, इफ इट इज एफ ऑफ एफ एक्स, क्यों नहीं, क्या दिक्कत है. तो ये ऑलरेडी एफ ऑफ एक्स तो हमने फाइंड आउट कर लिया, तो एफ ऑफ एक्स हमने फाइंड आउट कर लिया. इस फंक्शन के एग्जिस्टेंस के लिए, दैट्स ए न्यू कंपोजिट फंक्शन एफ ऑफ एफ एक्स, इस फंक्शन के एग्जिस्टेंस के लिए क्या रिक्वायर्ड है, तो रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स must be subset of
डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स। बोले सर ये चेक करना पड़ेगा क्या? चेक क्या करना, डोमेन ऑफ एफ एक्स तो ऑल रियल वैल्यूज है, वो तो एग्जिस्ट करना ही है, तय बात है। तो रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स सबसेट है, हाँ है। तो आप क्या करेंगे, यदि एफ एक्स से आपका 4x माइनस 1, लेट से इस एफ ऑफ एक्स को मैं कुछ नया नाम दे देता हूं, चलिए लेट इट बी एज इट इज, इसको एच एक्स लिख दूं, चलेगा? अरे समझने के लिए। तो अपनी रिक्वायरमेंट क्या है, एफ ऑफ एच एक्स। तो एफ ऑफ एच एक्स अगर मुझे रिक्वायर्ड है, या एफ ऑफ एफ एक्स अगर मुझे रिक्वायर्ड है दोस्तों, तो एफ ऑफ एच एक्स एक्चुअली इट इज, तो इट इज 4 टाइम्स in place of x hx minus 1, hx निकाल के बैठे हम 16x minus 5, तो ये हो जाएगा 64x minus 20 minus 1 minus 21. That's going to be f of fx there. बट दीज आर द सिंपल क्वेश्चन, बोर्ड एग्जाम में यूजुअली इतने तक ही पूछे जाते हैं, इसके आगे तक की भी हम बात करेंगे, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम लेवल में कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन होंगे और सारी बातें। बट ये वो क्वेश्चंस हैं जो डायरेक्टली हम जो बात कर रहे हैं वो क्या है कि f इज a to b एंड g इज b to c। अगर ऐसा लिखता हूं तो तय बात है कि x देन fx एंड देन g ऑफ f ऑफ x, तो g ऑफ f ऑफ x का एग्जिस्टेंस तो वो तो हमेशा होना ही है, क्योंकि fx की जो रेंज आएगी वो b के अंदर ही आएगी और b उसका डोमेन है, तो वो फंक्शन एग्जिस्ट करना है, तय बात है। वो डायरेक्टली यहाँ पे चेक भी लगाने की जरूरत नहीं है, वो डायरेक्ट फंक्शन एग्जिस्ट करेगा अगर ये कहानी है तो, a टू b और b टू c, क्योंकि जो भी रेंज होगी fx की, जो भी एलिमेंट आएगा x f मैपिंग के अंडर में, है ना, वो इस कोडोमेन में होगा, और वो कोडोमेन इस सेकेंड वाले मैपिंग के लिए डोमेन बन रहा है, तो जो भी रेंज आने वाली वो इस b के अंदर ही होगी, तो वो तो फंक्शन एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। Now 2 questions. The first one, f is r to r. The function is fx is equals to cos x, and the second mapping g is from r to r. Gx is x square, and we have to find out f of g of x and g of f of x. When I do write f of g of x or g of f of x, एक बात है, both the functions are from r to r. So it is very clear that both the mappings or both the functions are clearly going to exist. दोनों ही functions f of g of x और g of f of x हमेशा exist करेंगे. The requirement is for existence of f of g of x, जो range of gx है, range of gx, भाई x is an element there, under the mapping g it is going to be g of x, and then under the mapping f it is f of g of x. ठीक है ना, तो जो रिक्वायरमेंट है, दैट रिक्वायरमेंट इज रेंज ऑफ gx मस्ट बी सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ f ऑफ x. परेशानी क्या है, जो भी रेंज होगी, डोमेन तो ऑल रियल वैल्यूज है, उससे बाहर तो कुछ जा नहीं सकता, है ना। तो यस, दैट मैपिंग इज क्लियरली गोइंग टू एग्जिस्ट, वो हमेशा एग्जिस्ट करेगी. तो f ऑफ g ऑफ x इज सिंपली fx is cos x, it is cos of gx, that is cos x square. Simply that's the function f of g of x, and that is again going to be from r to r. If I write g of f of x, बोले सर चेक करो, चेक क्या करना, whatever be the range of fx, बोले सर it is -1 to 1, जानते हैं हम, बिल्कुल जानते हैं, ठीक है, must be subset of domain of gx का डोमेन तो all real values है, it is always going to exist there. So g of f of x, that g of f of x is going to be, ये gx is x square, in place of x it is fx, and fx whole square, and it is cos x whole square लिखें या cos square x लिखें. कई बार क्वेश्चंस में ऐसा भी हो सकता है कि वो आपको f of g of x देगा cos x square, और g of f of x देगा आपको cos square x, और आपको डिसाइड करना होगा व्हाट इज fx एंड व्हाट इज gx. तो आप क्वेश्चन को देख के आप बता पाओगे, ओके इट इज fx एंड इट इज gx. आपको ये दोनों लिख के देगा वो, और fx और gx पूछेगा, पूछ सकता है. लाइकवाइज व्हाट इज हैपनिंग इन द सेकंड वन, अगेन डायरेक्ट क्वेश्चंस आर देयर बिकॉज द मैपिंग इज फ्रॉम r to r, r to r. डोमेन ऑफ fx इज r and domain of gx is r.
The mapping of the function is fx is modulus of x and gx is modulus of 2x minus 3. दोनों ही functions का जो डोमेन है वो ऑल रियल वैल्यूज यहाँ पे गिवन है, सेम है, ठीक है ना. So if I to find out f of g of x here as well as g of f of x here, दोनों ही बात करें तो f of g of x is simply range of gx. By the way, if I ask you the range of gx, मुझे पता करने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए नहीं है कि जो भी रेंज होगी वो डोमेन ऑफ fx, तो fx तो ऑल रियल वैल्यूज लेके बैठा है, वो तो होगा ही होगा सबसेट. लेकिन स्टिल आई एम आस्किंग यू द रेंज ऑफ gx, जो आप ऑब्जर्वेशन से बता सकते हैं. मॉडुलस फंक्शन यू शुड नॉट थिंक मोर अबाउट दैट. 0 टू इन्फिनिटी इंक्लूडिंग 0 एग्जिस्ट करेगा, तय बातें करेगा. fx ऑफ x इज मॉडुलस ऑफ gx, gx is gx, that is this. दो बार मॉड लगाने का कोई मतलब नहीं, that is modulus of 2x minus 3, right? And when I say g of f of x, if it is g of f of x, अगर ये g of f of x है तो g of f of x में range of fx, it is to infinity, must be subset, it is always going to be the subset. So g of f of x, so in place of g of f of x, modulus of twice of fx minus 3, fx is what? Modulus of minus 3. और इसको आप फर्दर बता सकते हो कि for x greater than equals to 0, it is 2x minus 3, and for x less than equals to 0, it is minus 2x minus 3, या इसको प्लस साइन भी लिख सकते हैं. that is nothing but g of f of x. But these are the direct question. ये सब सीधे सीधे सवाल है. ये सब सीधे सीधे सवाल इसलिए हुए कि जब हमने f is a to b लिखा और जो g है वो सीधे सीधे b to c में है, तो फंक्शन में अगर देखता हूं g of f of x तो वो तो एग्जिस्ट करना ही करना है, ठीक है ना. बट विल बी लुकिंग फॉर सम डिफरेंट क्वेश्चन. ये तो डायरेक्ट हुआ. नाउ द क्वेश्चन इज f is a mapping which is having in the domain as 4 elements 2, 3, 4, 5, and codomain of that is 3, 4, 5, 9. You will be getting a clear cut idea here. This is mapping f. Second mapping is g there, having the domain as 3, 4, 5, 9. If you observe here, it is a to b, and then the same codomain is becoming the domain of this b to c वाली बात है ना. 7, 11, 15. You will be getting a clear cut idea here. वो जो क्वेश्चन हमने देखे अब तक वो सारे R to R में तो एग्जिस्ट सब कर ही रहे थे. Now it is A to B and it is B to C. Now the function is defined as, the function कैसे defined है, that f of 2 is 3, f of 3 is 4, f of 4 and f of 5 is 5. The second mapping is defined as g of 3 is equals to g of 4 is equals to 7, g of 5 as well as g of 9 is 11, and you have to find out g of f. You have to find out g of fx. g of fx find out करना आपको. देखिएगा, it's a case of A to B and then B to C. You will be getting a clear cut idea here. Why that mapping is exist and which are the elements there in the mapping g of f. Previously the questions which we have taken, those were directly from R to R to R, तो सब mapping exist कर रही थी, है ना. It is R to, ये तो A to A और A to A, तो सब exist करना ही था. अब देखिए इधर इधर g of f, पहले तो इसको बना लिया था. You will be getting the idea, कोडोमेन और रेंज और वो सारी बातें जो हैं आपको पता इसी को. Elements in the domain 2, 3, 4, 5. Elements in the codomain 3, 4, 5, 9. Now the f of 2 is 3, f of 3 is 4,
f of 4 is 5 and f of 5 is 5. Clearly that's a many one mapping there. You will be getting an idea there. इसको A कहें, इसको B कहें, and that is B to C. रेंज क्या है इसकी, रेंज ऑफ एफ एक्स क्या है, तो रेंज ऑफ एफ एक्स इज 3459. सो सॉरी, कोडोमेन इज 3459 एंड रेंज इज 345. फॉर द नेक्स्ट मैपिंग के लिए विच इज जी 3459, दैट कोडोमेन इज बिकमिंग द डोमेन फॉर दैट. ठीक है, बढ़िया. 7 11 15 समझाने के लिए लिख रहा हूं. रेंज क्या है 345, कोडोमेन क्या है 3459. दैट कोडोमेन इज बिकमिंग द डोमेन फॉर दैट मैपिंग जी. बढ़िया. सो अब जी मैपिंग कैसे डिफाइंड है, जी ऑफ 3 is 7, जी ऑफ 4 is 7, जी ऑफ 5 is 11 and जी ऑफ 9 is also 11. ठीक है. आपसे पूछा गया है जी ऑफ एफ ऑफ एक्स. दिस इज जी ऑफ एफ ऑफ एक्स. एग्जिस्ट करेगा, जरूर करेगा. द रीजन इज द रेंज ऑफ एफ एक्स विच इज 345 इज क्लियरली अ सबसेट ऑफ डोमेन, क्योंकि डोमेन ऑफ जी एक्स तो 3459 है. जो कोडोमेन है एफ एक्स का वही तो डोमेन बन रहा है, तो रेंज उससे बाहर थोड़ी ना जाने वाली, तय बात है. तो एग्जिस्ट तो करेगा. दैट्स अ न्यू मैपिंग देयर एंड दैट्स अ मैपिंग फ्रॉम ए टू सी. देन जो नई मैपिंग होगी वो कौन सी मैपिंग होगी, वो होगी ए से सी में, वो ए से सी में. तो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स कैसे लिखोगे दोस्तों आप, तो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, तो एक्स देखिएगा प्लीज, इसको ध्यान से. ये एलिमेंट्स 2 3 4 5 प्रेजेंट इन द डोमेन ऑफ एफ एक्स. इफ एक्स इज 2, बहुत ध्यान से देखिएगा, मजा आएगा. जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, तो जी ऑफ एफ ऑफ 2 दैट इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू जी ऑफ एफ ऑफ 2, दैट इज व्हाट. तो एफ ऑफ 2 देखो रे, एफ ऑफ 2 कितना है 3. बहुत अच्छा लगेगा आपको. एफ ऑफ 2 इज 3, जी ऑफ 3, और जी ऑफ 3 कितना है 7. सो x इक्वल्स टू 2 के करस्पोंडिंग जो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स आया वो क्या आया 7. ठीक है. x इक्वल्स टू 3 बिकॉज दैट न्यू मैपिंग इज फ्रॉम दिस a टू c. x इक्वल्स टू 3, so g of f of 3, that is what, so g of f of 3, f of 3 is 4 and f of 4 is 7, right. x equals to 4, g of f of 4, f of 4 is 5, g of 5 is 11. ठीक. If x is 5, g of f of 5, f of 5, f of 5 क्या बन रहा है, x equals to 5, f of 5 is 5, 11. इतना ही है, बिकॉज एलिमेंट्स, बिकॉज दैट्स ए न्यू मैपिंग देयर. अब मैं अगर इसको ड्रॉ करके भी समझा दूं आपको, देखिएगा जी ऑफ एफ ऑफ एक्स जो नई मैपिंग है वो कैसी मैपिंग है, यू विल बी गेटिंग अ क्लियर कट आइडिया. दैट इज गोइंग टू बी फ्रॉम ए टू सी. इट इज 2 3 4 5, इट इज 7 11 15, और जो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स है ए टू सी में, दिस इज जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, और 2 के करस्पोंडिंग 7, 3 के करस्पोंडिंग 7, 4 के करस्पोंडिंग 11 और 5 के करस्पोंडिंग 11.
दोस्तों दैट्स द मैपिंग विच इज जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। ये बात इससे समझ में आना चाहिए, जरूर आना चाहिए। अर्लियर द क्वेश्चंस विच वी हैव टेकन वर डायरेक्टली R2R वो तो सारे एग्जिस्ट करना ही थे, उसमें कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है। बट इट गिव्स यू द क्लियर कट आइडिया कि हम क्या चाहते हैं। जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, दैट्स दिस मैपिंग, ये एफ एक्स, ये जी एक्स, बट दैट्स अ न्यू मैपिंग, दैट्स अ न्यू फंक्शन जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, राइट। अगर मान लीजिए आपसे यहां पूछा जाता इसी क्वेश्चन में जी ऑफ एफ तो एग्जिस्ट कर रहा था, बना दिया हमने। इफ आई आस्क यू एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, तब क्या करते? एक बार जरा सोचिएगा, फर्स्ट नोट डाउन दिस एंड देन थिंक अबाउट एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। और अगर एफ ऑफ जी एक्स कब एग्जिस्ट करता, कब एग्जिस्ट नहीं करता, वो बात करें। द सेम क्वेश्चन इज देयर एंड इफ वी थिंक अबाउट एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, if we think about f of g of x, earlier one was g of f of x जो हमने find out किया। if it is f of g of x, now first g mapping, and then it will become f of g of x। अब देखें जरा क्या बात होती है। 3 4 5 9 7 11 15, 3 4 5 9 के करस्पॉन्डिंग तो 3 की इमेज है 7, 3 g of 3 7, g of 4 7, g of 5 11, g of 9 11, ठीक है। बट ये तो g मैपिंग, वी वांट f of g of x टू एग्जिस्ट। अब हम चाहते हैं f of g of x। f of g of x का मतलब ये हुआ दोस्तों, ये x, this is x and this is f of g of x। we are directly talking about this mapping। क्या वो एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी? 7 11 15 जो है तो ये कोडोमेन है g का, और 7 11 है रेंज है g की। अब f मैपिंग को अगर आप देखते हो तो f मैपिंग में जो डोमेन है वो है 2 3 4 5, और जो उसकी रेंज है दैट इज 3 4 5 9। एक सीधी सी बात है, जो रेंज है 7 11 और f मैपिंग में तो कुछ कॉमन ही नहीं है, तो हाउ कैन आई राइट देयर? f लिख भी नहीं सकता हूं मैं, f लिख भी नहीं सकता हूं यहां पर, तो मैं एग्जिस्टेंस की तो बात ही छोड़ो। हाउ कैन आई राइट f? f का डोमेन थोड़ी ना हो रहा है यहां पे कुछ भी। नॉट इवन अ सिंगल एलिमेंट इज कॉमन है। एक मजेदार बात यहां पर ये, अब तक तो जो क्वेश्चन देख रहे थे उसमें रेंज वॉज द सबसेट वाली बात कहीं कहीं हो रही थी। अभी तो आपका 7 11 15, तो 7 11 जो है रेंज है gx की, रेंज है gx की 7 11, ठीक। लेकिन fx का जो डोमेन है उसमें नॉट इवन अ सिंगल एलिमेंट कॉमन देयर, तो नॉट इवन अ सिंगल एलिमेंट कॉमन देयर, so there is no question of existence of f of g of x। f of g of x एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, नॉट इवन अ सिंगल एलिमेंट, एग्जिस्ट ही नहीं करने का, है ना। ये तो f लिख भी नहीं सकता हूं खैर इसको मैं, क्योंकि देयर इजंट एनीथिंग कॉमन देयर। f का तो जो डोमेन है वो 2 3 4 5 है, और यहाँ पे तो 7 11 15 कुछ भी कॉमन नहीं है। f of g of x डज नॉट एग्जिस्ट, एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो ये भी ध्यान रखने वाली बात होती है कि f of g of x इन जनरल इज नॉट इक्वल टू g of f of x। इन जनरल इट इज नॉट इक्वल टू, कम्युनिटी लॉ होल्ड नहीं करता, है ना। इन जनरल जरूरी नहीं कि एग्जिस्ट करे, करे तो भी सेम हो, कतई जरूरी नहीं, हमने देखे दूसरे क्वेश्चंस में भी, है ना। तो इन जनरल f of g of x इज नॉट g of f of x। We are discussing about the composite functions, but now if I discuss about, there is a mapping from f which is a to b. Domain of that function is a and codomain of that function is b. There is a second mapping, g mapping, which is from c to d. अब डिफरेंस वाली बात जो देखिएगा, प्रीवियस क्वेश्चन वेर डायरेक्ट क्वेश्चंस जो डायरेक्ट सीधे सीधे हो रहे थे। Now the second mapping, G mapping, is C to D. C is the domain of that function and D is the codomain of that function. Earlier one तो हम डायरेक्ट बात की A to B और B to C, तो एग्जिस्ट करना ही है, उसमें कहाँ परेशानी है ना।
but now it is f is a mapping from a to b and g is a mapping from c to d. And if I discuss about g of f of x, so when does this g of f of x exist? g of f of x exist कब करेगा? And by the way, the previous question was the best example. अगर आप सोचें उसको, तो g of f of x के existence के लिए, जैसे अभी हमने जो मैपिंग्स बनाई थी उसके अकॉर्डिंग, तो g of f of x तभी एग्जिस्ट करेगा भाई. एक्चुअली इट इज व्हाट, x then fx and then g of f of x, and we are thinking about this, है ना, इस मैपिंग के बारे में हम देख रहे हैं. तो g of f of x के एग्जिस्टेंस के लिए बहुत जरूरी है that range of fx. In the previous question we were discussing that ये एग्जिस्ट करेगा. Now you will be getting the idea. When range of fx is a subset of domain of gx. आप बोलेंगे सर वो तो आपने पहले भी लिखा था, बट इन अर्लियर केसेस व्हाट वाज हैपनिंग देयर, डोमेन वाज आर आर आर, तो वहां कहीं कोई परेशानी नहीं. अभी क्या होगा कि रेंज ऑफ एफएक्स, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में 2 पॉइंट से जो रेंज में आ रहे थे और हमने देखा एफएक्स का एक भी डोमेन का कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं था, तो सवाल ही नहीं उठता. लेकिन इवन इफ देयर इज अ सिंगल एलिमेंट कॉमन देयर, रेंज ऑफ एफएक्स, एफएक्स की जो रेंज आई उसमें 1 2 3 कुछ एलिमेंट्स आए, और डोमेन ऑफ जीएक्स में मान लीजिए, केवल समझिए कि रेंज ऑफ एफएक्स में मान लीजिए 1 2 3 एलिमेंट्स आए ये रेंज में, ठीक है. और जो डोमेन है जी का, उस डोमेन ऑफ जी में 2 3 5 है. तो एक सीधी सी बात है, इस रेंज के ये 2 एलिमेंट्स इधर भी प्रेजेंट है, कुछ कॉमन है, हाँ है, इज अ सबसेट ऑफ दैट. तो इन दोनों एलिमेंट्स के करस्पॉन्डिंग यू विल बी गेटिंग द कंपोजिट फंक्शन इवन इफ देयर इज अ सिंगल एलिमेंट कॉमन. मान लीजिए डोमेन में 3 5 7 है, इवन इफ, ठीक है, एक एलिमेंट तो कॉमन है, रेंज सबसेट ऑफ डोमेन, यस देयर इज अ सिंगल एलिमेंट कॉमन है, क्या है, तो फिर जरूर एग्जिस्ट करेगा उस एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग, और अगर नहीं है तो नहीं करेगा. So g of f of x का एग्जिस्टेंस होगा when range of fx is a subset of domain of g of x. और ये x के लिए हमने लिखा था, ये fx था, it is a to b, है ना, fx is a to b and gx is c to d. अब हमने कहा रेंज जो है वो इसका सबसेट होना चाहिए, ठीक है. तो g of f of x के केस में कैन यू टेल मी द, कैसे लिखोगे g of f of x मैपिंग के लिए? It is going to be from, g of f of x is going to be from a to d, a to d, यही तो होता है ना, वो a to b. बोले सर फिर वो फिर b नहीं, c to d. कुछ एलिमेंट्स कॉमन है, किसमें? इन दोनों में. इन दोनों में भी नहीं बोलना चाहिए, इनफैक्ट जो रेंज आ रही है, क्योंकि रेंज सबसेट होगा fx का, fx की जो रेंज आई है वो b के अंदर ही पड़ेगी कहीं ना कहीं, और जो रेंज है वो अगर इसके अंदर से मिल जाती है तो वो फंक्शन एग्जिस्ट करेगा, तो वो g ऑफ f ऑफ x a to d होगा. एंड लाइकवाइज व्हेन आई से f ऑफ g ऑफ x, दिस इज x gx एंड देन f ऑफ x. तो दोस्तों इट विल एग्जिस्ट कब? व्हेन रेंज ऑफ gx is a subset of इस fx के. और ये जो मैपिंग लिखी जाएगी एट f of g of x, that is going to be from कहां से कहां तक? c to b. just note down this, I will be explaining that कि क्या मतलब है रेंज इज अ सबसेट. अब बात करते हैं हम जरा उसके बारे में. If I take a question of simple question of fx is some exponential function e raised to power x
and gx is log x with base e. तो हम इनके जो डोमेन रेंज है उन्हीं को देखते हुए लिखते हैं, देखें जरा क्या होता है. तो एफ एक्स अगर e टू द पावर x है, तो इफ आई राइट लाइक एफ एक्स इज e टू द पावर x, r टू r में लिखते हैं इसको, एफ एक्स इज e टू द पावर x. एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, डोमेन इज ऑल रियल वैल्यूज, रेंज इज नॉट ऑल रियल वैल्यूज. रेंज क्या है? 0 से इन्फिनिटी, इन नॉट इंक्लूडिंग 0, बट r इज द को डोमेन देयर. ठीक, g इज अ मैपिंग, बट व्हेन आई राइट g मैपिंग में log x इज डिफाइंड क्लियरली फॉर x ग्रेटर देन 0. तो इसका डोमेन ऑल रियल वैल्यूज नहीं लिख सकता, इसका जो डोमेन होगा 0 से इन्फिनिटी एंड द को डोमेन इज r. ठीक, दैट gx इज log x. और मेरा इंटरेस्ट है यहां पर, आई हैव टू फाइंड आउट f ऑफ g ऑफ x एंड g ऑफ f ऑफ x बोथ. f ऑफ g ऑफ x एंड g ऑफ f ऑफ x दोनों हमें फाइंड आउट करना है. So when I say f of g of x, अच्छा यहां पर रेंज क्या, तो ये रेंज भी लिख लेते हैं अपन. रेंज ऑफ एफ एक्स 0 से इन्फिनिटी, रेंज ऑफ जी एक्स माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, ऑल रियल वैल्यूज. ठीक है, देख लीजिएगा, इसके बाद बात खत्म हो जाएगी. एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स के अकॉर्डिंग ये एग्जिस्ट करेगी मैपिंग, प्रोवाइडेड रेंज ऑफ जी एक्स इज सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ एफ एक्स. तो रेंज ऑफ जी एक्स, व्हाट इज दैट रेंज ऑफ जी एक्स? ऑल रियल वैल्यूज. Whether it is a subset of domain of fx, the domain of fx is all real values. Yes, definitely this mapping is clearly going to exist, क्योंकि range क्या है, तो range is all real value, it is a subset, कोई परेशानी नहीं है. तो yes, f of g of x is going to exist. क्या होगा f of g of x? तो f of g of x ये exist तो करेगा e to the power gx e to the power log x with base e which is x. तो f of g of x जो नया फंक्शन है which is going to be x. How can I write its domain and codomain? How can I write this f of g of x? जब मैं लिखूंगा तो f of g of, जब मैं a to b और c to d लिख रहा था उसी के अकॉर्डिंग आप मुझे जवाब देंगे. f of g of x is from x then g of x and then f of g of x. g of x का डोमेन, g of x का डोमेन, भाई log x रखा आपने तो कहां से रख दिया? log x खुद कब डिफाइंड है? जीरो से इन्फिनिटी. समझे इस बात को? ये x g of x f of g of x, जीरो से इन्फिनिटी है ना, टू आर. फंक्शन क्या है? x. ठीक. लाइकवाइज इफ आई टू फाइंड आउट g ऑफ f ऑफ x, ध्यान से देख लें जरा. तो रेंज ऑफ f x must be subset of domain of gx. रेंज ऑफ एफ एक्स, व्हाट इज दैट रेंज ऑफ एफ एक्स? तो रेंज ऑफ एफ एक्स की रेंज लिखा है हमने, क्या है? जीरो से इंफिनिटी. डोमेन ऑफ जी ऑफ एक्स, बढ़िया, सबसेट है मतलब एग्जिस्ट करेगा. एग्जिस्ट करेगा, हाउ टू राइट दैट जी ऑफ एफ ऑफ एक्स? दैट इज गोइंग टू बी जी ऑफ एफ ऑफ एक्स. ये जी एक्स है, उसमें log एफ एक्स, दैट इज log एफ एक्स इज व्हाट?
e to the power x x। और बोले सर सेम आ रहा है, अच्छा सेम आ रहा है, अच्छी बात है। कैसे लिखेंगे देखें जरा, सेम आ भी रहा है या नहीं आ रहा है। g of f of x, write the domain of that function, g of f of x, x then fx and then g of f of x। तो है ना, अपन तो इसकी बात कर रहे हैं, अपन तो इसकी बात कर रहे हैं। तो जो fx का डोमेन है, क्या है fx का डोमेन? ऑल रियल वैल्यूज। और g ऑफ f ऑफ x, तो gx का वो डोमेन R to R में, दैट फंक्शन इज x। आप क्या बोलते हो, दोनों फंक्शन सेम है क्या? और बोले सर सेम ही तो और क्या चाहिए, f ऑफ g ऑफ x x है और g ऑफ f ऑफ x सेम है। नो, domain of that function is 0 to infinity there, and domain of that function is all real values are there, those two are not same। तो दोनों फंक्शन आइडेंटिकल नहीं है। एक और टर्म होती है, विल बी डिस्कसिंग लेटर ऑन, टू फंक्शंस आर सेड टू बी इक्वल फंक्शंस या आइडेंटिकल फंक्शंस प्रोवाइडेड देयर डोमेन एज वेल एज करस्पॉन्डिंग रेंज बोथ आर सेम। विल बी डिस्कसिंग क्वेश्चंस एंड एज वेल एज एग्जांपल। एक टर्म बता रहा हूं मैं आपको, दो फंक्शंस आइडेंटिकल फंक्शंस या इक्वल फंक्शंस तब होते हैं व्हेन देयर डोमेन सेम हो उनके, as well as their corresponding range must also be same। First note down this। So we are discussing the composite function. Now two functions defined as fx is plus 1 for x less than equals to 1, 2x plus 1 for greater than 1 but less than equals to 2, gx is the second function which is x square for minus 1 to 2, x greater than equals to minus 1 but less than 2, it's x plus 2 when x is greater than equals to 2 but less than equals to 3। ये fx और gx दो फंक्शंस गिवन है आपको, एंड वी हैव टू डिस्कस हियर। हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है f of g of x। we'll be finding out both f of g of x as well as g of f of x। देखो, now we are very much comfortable that f of g of x का एग्जिस्टेंस केवल तब होगा जब रेंज ऑफ gx की रेंज fx के डोमेन का सबसेट होगी, है ना, सीधी सी बात है। बट स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझाता हूँ f of g of x। तो फर्स्ट स्टेप f of g of x। नाउ fx में यहाँ पर दो फंक्शंस है और gx में भी दो फंक्शंस हैं। f of g of x, इन प्लेस ऑफ x आई हैव केप्ट gx, x को gx से रिप्लेस किया। इन प्लेस ऑफ द डोमेन ऑल्सो, डोमेन में भी x को gx से रिप्लेस किया। सेकेंड वन, ट्वाइस ऑफ, इन प्लेस ऑफ x gx, ठीक। द फर्स्ट स्टेप f of g of x, in place of x we have kept gx। what is that gx? gx जो फंक्शन है, gx is defined as x square for that interval and x plus 2 for the second interval। so if I to solve analytically, मुझे यहाँ पर देखना पड़ेगा कि gx, I am going to put gx x square as well as x plus 2 here, और मैं चेक करूँगा, और I am going to put gx x square as well as x plus 2 here, और मैं चेक करूँगा whether it is a composite function में आएगा या नहीं आएगा। इन ऑल मुझे चार सॉल्यूशंस चेक करना पड़ेंगे। चार क्यों, समझो इस बात को। दैट x square is going to be placed here as well as here, that x square itself is existing for these values of x। likewise x plus 2 you are going to place here as well as here, definitely जब इधर बोल रहा हूँ तो इधर भी, and that x plus 2 itself is existing for 2 to 3। that's the first question of its type। और ध्यान से देखिएगा, लेकिन मैं यहाँ पर मैं आपको दोनों तरीके से समझाता हूँ कि डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं। बट डायरेक्ट करने के लिए ज़रूरी है कि रेंज निकालना तो अपने को कंफर्टेबल होना ही चाहिए, और रेंज निकालना बहुत छोटी सी साधारण सी बात अब आप लोगों के लिए। देखो, gx plus 1 when gx less than equals to 1 and twice of gx plus 1 when gx is greater than 1 but less than equals to 2। रेंज ऑफ gx इधर साइड में अगर लिखता हूं मैं, क्योंकि f of g of x रिक्वायर्ड है। रेंज ऑफ gx बता पाएंगे आप मुझे थोड़ा सोच समझ के, और मैं आपको डायरेक्ट पूरा भी सॉल्व करके बताऊंगा, बट एक्चुअल में क्या क्या सॉल्यूशंस आने वाले हैं, यू विल बी गेटिंग द आइडिया ऑफ दैट।
रेंज ऑफ जी एक्स, वेदर दैट फंक्शन एफ ऑफ जी ऑफ एक्स कब एग्जिस्ट कर रहा है कब नहीं कर रहा है, रेंज ऑफ जी एक्स बताएं जरा, रेंज ऑफ जी एक्स। बोले सर क्या फंक्शन क्या है, एक्स स्क्वायर है, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू -1 बट लेस देन 2, -1 से 2 में एक्स स्क्वायर इज अ सिंपल फंक्शन। सुन रहे हैं सभी लोग ध्यान से, रेस्ट नहीं करना अभिषेक भाई। एक्स स्क्वायर इज अ सिंपल फंक्शन, पैराबोलिक फंक्शन, ओपनिंग अपवर्ड फंक्शन, और डोमेन उसका -1 से 2 है। तो रेंज क्या होगी, ज्यादा ठंडी हवा आ रही है क्या उधर से, थोड़ा ठंडी हवा आ रही है उधर से, कूलर बहुत नजदीक है आपके, बहुत पास बैठे हैं आप कूलर, -1 to 2। तो -1 से 2 के डोमेन में इफ आई आस्क यू द रेंज ऑफ दैट फंक्शन इट इज गोइंग टू बी 0 to 4। अरे एक्स स्क्वायर तो प्लॉट कर सकते हो, ओपनिंग अपवर्ड पैराबोला, if I ask you the range of this second function gx which is x plus 2 for x greater than equals to 2 but less than equals to 3, स्ट्रेट लाइन है, 2 पे वैल्यू 4 होगी, 3 पे वैल्यू 5। रेंज ऑफ gx must be subset of what, range of gx domain of fx। अब fx क्या है, ये दो फंक्शंस हैं, बोर्ड पे देखिएगा ध्यान से। इफ इट इज 0 to 4, रेंज इज gx 0 to 4, और ये क्या है, दैट इज द डोमेन ऑफ fx, इट इज x लेस देन इक्वल्स टू 1। बहुत ध्यान से जवाब दें तो बेहतर होगा। कुछ कॉमन है इसमें या नहीं है, इज इट अ सबसेट, कुछ एलिमेंट्स कॉमन है या नहीं है इसमें, इसका मतलब है कॉमन है, और कॉमन है मतलब कंपोजिट फंक्शन एग्जिस्ट करेगा। सो आई एम गोइंग टू प्लेस एक्स स्क्वायर हियर, है ना, हियर एक्स इज 1 to 2, रेंज एक्स स्क्वायर की रेंज है 0 से 4, है ना, कुछ कॉमन है क्या, कॉमन है, इसका मतलब ये फंक्शन भी एग्जिस्ट करेगा। इनफैक्ट आई एम गोइंग टू कीप एक्स स्क्वायर एट बोथ द प्लेसेस। ये डायरेक्ट बता रहा हूँ अभी मैं आपको, पहली बार में अटपटा लगेगा लेकिन क्लैरिटी आ जाएगी, कई सारे सवाल देखोगे आप। हियर द फंक्शन इफ फंक्शन इज g ऑफ x इज x plus 2, रेंज क्या है 4 to 5, ये डोमेन ऑफ fx x लेस देन इक्वल टू 1, कुछ कॉमन है क्या इसमें, रेंज ऑफ gx 4 to 5 और डोमेन इज x लेस देन इक्वल टू 1, कुछ कॉमन है क्या, नहीं है, तो एग्जिस्ट नहीं करेगा कंपोजिट फंक्शन फॉर दिस gx। 4 to 5 और ये 1 से 2, इज देयर समथिंग कॉमन देयर, नथिंग इज कॉमन देयर, दैट फंक्शन इज नॉट गोइंग टू एग्जिस्ट देयर। जो कंपोजिट फंक्शन है वो एग्जिस्ट तो करेगा बट दैट विल एग्जिस्ट फॉर दिस। मुझे 4 लिखना होते ना, यहां पर ये f ऑफ x है, ध्यान से देखें, gx x स्क्वायर इधर इधर और x plus 2 इधर और इधर, टोटल मुझे 4 को चेक करना पड़ता, करूंगा मैं आपको करके तो बताऊंगा, लेकिन रिजल्ट जो आने वाला है डोमेन रेंज सबसेट ऑफ डोमेन वो तो 2 के लिए ही है। यू विल बी गेटिंग द कंपोजिट फंक्शन फॉर x स्क्वायर बट यू आर नॉट गोइंग टू गेट द कंपोजिट फंक्शन फॉर x plus 2। नाउ देखिएगा जरा व्हाट इज द प्रोसीजर देयर, ध्यान से। f of g of x, if I keep gx क्या है, gx is x स्क्वायर, हमने देख लिया कि यार कितने आने वाले हैं, तो हमने तो पहले ही ऑब्जर्व कर लिया कि 2 रिजल्ट्स आएंगे और 2 नहीं आएंगे। बोले 2 कौन से नहीं आएंगे, x plus 2 वाले नहीं आने वाले इधर, बट स्टिल विल चेक। प्रोसीजर देखिएगा, gx को x स्क्वायर रखा +1, gx is x स्क्वायर डोमेन में भी रखा उसके, पर एट द सेम टाइम gx खुद कब एग्जिस्ट कर रहा है, तो gx इज एग्जिस्टिंग फॉर -1 to 2, ठीक। In place of gx I have kept x square, in place of gx I have kept x square, and at the same time that gx itself is existing for these values of x, so x square less than equals to 1 अर्थात
-1 to 1, it is -1 to 2. कॉमन है, यस देर इज कॉमन. दैट कंपोजिट फंक्शन, इट इज x स्क्वायर प्लस 1. यू आर गोइंग टू गेट x स्क्वायर प्लस 1. -1 से 1 और -1 से 2, इन दोनों का कॉमन, यस, -1 to 1. दैट्स द कंपोजिट फंक्शन. बोले हो गया? नहीं भैया, ये f of g of x, you are getting this. Okay. Now again I am calculating f of g of x. This x square I am going to keep in the second one. पहले देखिएगा, बाद में लिखिएगा. Twice of x square plus 1, gx is x square less than equals to 2, greater than 1, gx को x square रखा, and that gx itself is existing for -1 to 2. But if you are not able to solve the linear inequalities या quadratic inequalities very well, आपको इंटरसेक्शन लेने में परेशानी, तो आप दिक्कत में आ जाओगे. एक्स स्क्वायर भाई आप किसके लिए सॉल्व कर रहे हो? इन दोनों के लिए. एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 1 और एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू 2, इसका रिजल्ट क्या होगा? व्हाट इज द इंटरसेक्शन ऑफ दैट? क्या रिजल्ट होगा? एक्स स्क्वायर 1 से 2 में है, तो मुझे तो एक्स चाहिए, तो एक्स स्क्वायर लिख देता हूं आपकी परेशानी सॉल्व करने के लिए. एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 1, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर -1 ग्रेटर देन 0, दैट मीन्स -1 1 रूट बेबी कर्व प्लॉट करोगे. राइट. एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू 2, तो एक्स स्क्वायर -2 लेस देन इक्वल्स टू 0, एक्स माइनस √2 एक्स प्लस √2 रूट्स होंगे. -√2 to +√2, दोनों में कुछ कॉमन, दोनों का कॉमन. व्हाट इज दैट कॉमन देयर? -√2 अप्रोक्सीमेट वैल्यू -1.414, √2 1.414, कॉमन है क्या कुछ? इसका अभी तो इसी का रिजल्ट निकाल रहा हूं मैं. x इज एन एलिमेंट ऑफ, बोले सर कॉमन कैसे लेना, तो अब मत पूछिएगा, अच्छा नहीं लगता अपना. And now take the intersection common of the two. What is the common there? -1 से 2, ये -√2 से -1, कॉमन कितना क्या मिल रहा है? ये -1, ये नहीं, -1 तो नहीं आ रहा है, 1 से √2 पूरा पूरा इंटरवल आ रहा है. दोस्तों इस मोमेंट पर कॉमन लेना समझाना उचित नहीं होगा. बेसिक मैथ्स वी हैव डिस्कस इन 8 और 9 क्लासेस एटलीस्ट, वही तो सब कुछ पढ़ा था और क्या पढ़ा था. दैट इज द सेकेंड, ये कंपोजिट फंक्शन जो एग्जिस्ट कर रहे हैं. अभी क्या करने का सुनिएगा ध्यान से. x+2 इज ऑल्सो देयर, यू आर गोइंग टू कीप x+2 हियर एज वेल एज हियर ऑल्सो. ऑलरेडी हम ये बात पता लगा चुके हैं, समझाने के लिए बता रहा हूं मैं तो आपको, दैट रेंज ऑफ gx मस्ट बी सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ fx. तो रेंज ऑफ ये तो सेटिस्फाई करता नहीं है, इसका मतलब रिजल्ट आना नहीं चाहिए, बट स्टिल वी ट्राई फॉर दैट. ध्यान से देखें, सीखेंगे आप. इतनी बार मैंने बोल दिया, ध्यान से देखो कि ध्यान ही लग जाएगा, मुझे ऐसा लग रहा है. मतलब f of g of x, ध्यान का मतलब समझते हो ना? मतलब हाँ, अच्छा. gx, what is that gx? Now I am keeping that x+2 here and then here. x+2 plus 1 plus 2 less than equal to 1, but that function itself is existing for 2 to 3. So x+2 less than equals to 1, x less than equals to -1. दोस्तों it is x less than equals to -1, it is x is greater than equals to 2 but less than equals to 3. Nothing is common there. समझ रहे हो क्या? कॉमन नहीं है कुछ भी, और कॉमन नहीं है मतलब दैट कंपोजिट फंक्शन इज नॉट गोइंग टू एग्जिस्ट. Likewise,
If I check for, now I am going to keep x plus 2 here. Second one, twice of in gx x plus 2 right, that function itself is existing for 2 to 3. x plus 2 है, मुझे तो x रिक्वायर्ड है, x माइनस ट्रैक किया, ये -1 से 0 और ये 2 से 3 कॉमन, यू आर नॉट गेटिंग एनीथिंग कॉमन देयर. आना भी नहीं था वो, तो क्यों नहीं आना था? बिकॉज ऑलरेडी वी हैव सीन दैट रेंज ऑफ gx मस्ट बी सबसेट ऑफ डोमेन. अगर कुछ एलिमेंट्स कॉमन है तो मिलेगा आपको. जैसे यहां पर आप समझो, शायद ये बात समझ में आए, ये रेंज इज 4 to 5, रेंज ऑफ gx इज 4 to 5, और यहां पर डोमेन में लेस देन इक्वल टू 1 और 1 से 2, 4 से 5 तो कहीं है ही नहीं. नहीं है तो कहां से मिलेगा आपको? हाउ कैन यू फाइंड आउट दैट कंपोजिट फंक्शन इज नॉट गोइंग टू एग्जिस्ट देयर? बट हियर इफ यू ऑब्जर्व देयर, रेंज ऑफ gx इज 0 to 4, इट इज लेस देन इक्वल टू 1. 0 से 4 और लेस देन इक्वल टू 1 पूरा का पूरा सबसेट तो नहीं, देयर इज पार्ट देयर. 0 से 4 और लेस देन इक्वल टू 1, तो 0 से 1 वाला पार्ट है, उसमें कॉमन है. कॉमन है इसका मतलब फंक्शन एग्जिस्ट करेगा और इसीलिए किया. देन 0 से 4 और ये 1 से 2, अगेन देयर इज सम पोर्शन कॉमन देयर, कुछ एलिमेंट्स हैं कॉमन देयर, या कुछ इंटरवल है कॉमन, कुछ है तो ये एग्जिस्ट किया. लेकिन ये 4 से 5 तो कुछ भी कॉमन नहीं है, तो नहीं एग्जिस्ट किया. दैट्स द अप्रोच टू फाइंड आउट कंपोजिट फंक्शन एनालिटिकली. द प्रीवियस क्वेश्चन वेर अ डायरेक्ट क्वेश्चन, बिकॉज यूजुअली बोर्ड एग्जाम में उतने तक ही आता है, बट ये उससे आगे की बात. The question which I have solved here, f of g of x, now it's up to you to solve g of f of x, है ना. f of g of x मैंने किया, g of f of x आपको